ان کی ایکس تھی. کیوں بھائی رونا نہیں, مہربانی یار. کیا ہو گیا ہے, اتنی پرانی بات ہے. تو یہ تھا کہ میرے پیچھے بھی میرے بھائی ہوتے, میرا ابا ہوندا تے دی کی ضرورت سی کسی اور پاسے تک بھی. جی السلام علیکم, کی حال چال کتنا ودیا ٹھیک ٹھاک ہو. تو ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ تو لاؤڈ گرل آپ کا نام ہونا چاہیے. مطلب انہوں نے کہا کیا میں مجھے اسامہ دے دے, مطلب یہ گاؤں میں سب بھی ہیں ادھر. تو پتہ یہ دوسری شادی کا کیا سین تھا, یہ کیا اصل میں تھی ویسے. لیکن جس کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی وہ ان کی ایکس تھی. کیوں بھائی رونا نہیں, مہربانی یار. کیا ہو گیا ہے, اتنی پرانی بات ہے. تو یہ تھا کہ میرے پیچھے بھی میرے بھائی ہوتے, میرا ابا ہوندا تے دی کی ضرورت سی کسی اور پاسے تک بھی جاندا. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب. میرا نام ہے کنول ذوالقرنین اور میرے ساتھ ہیں آپ سب کے خوبصورت بھائی جلال بھائی. کیونکہ دیکھیں مجھے بھابھی نے کہا ہوا ہے کہ آپ تو کہتی ہیں بھائی, آپ کی ٹینشن ہے, آپ نہ کہیں, لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جلال بھائی کہنا ضروری بالکل بنتا ہے. دیکھیں میں اپنی بہن کے سب کا بھائی ہوں میں, سب کے بھائی جلال بھائی. تو جلال بھائی بابا جی سیالکوٹ کیا سین ہے یار. یہ ہماری نا ایک بہت ہی ایک کیوٹ سی ٹک ٹاکر ہیں اور وہ بابا جی سیالکوٹ کر کے نا وہ مشہور ہوئی اور آج ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے اور انہوں نے سیالکوٹ کو بھی مشہور کیا ہے. Yes. مطلب سیالکوٹ کو جانتے ہیں, اوبویس ہے, سب لوگ جانتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک نام لیتے رہو, سیالکوٹ. تو لوگوں کی سیالکوٹ والے کہہ رہے ہوں گے کیا سین ہو گیا یہ بابا جی. سیالکوٹ والے خوش ہو رہے ہوں گے, ان کے لیے تو پراؤڈ مومنٹ ہوگا. یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے نا. تو ہم ویلکم کرتے ہیں سائلنٹ گرل کا اور ساتھ میں ان کے شوہر جی کا, اسامہ بھائی کا. کیسے آپ سب سے پہلے تالیاں, آپ لوگ آئے ہمارے لیے. اور بتائیں جی کیا حال چال ہے آپ دونوں کے. ہم دونوں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں سسٹر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آج ہم آپ کی بیگم کو زیادہ بولنے سنیں گے, آپ کو کم ہی آپ نے بولنا ہے. نہیں یہی بول رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ شوہر کم ہی بولتے ہیں. نہیں میں بیگمیں زیادہ بولتی ہیں. میں بہت کم بولتا ہوں, آپ بول لیں, بتائیں کیسے ہیں آپ. میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, دعائیں آپ کی. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. الحمدللہ بھائی آپ بتائیں. الحمدللہ زبردست. الحمدللہ آل گڈ. پہلے تو شکریہ میں نے ادا کیا کہ آپ لوگ اتنی دور سے ہمارے لیے آئے ہیں اور آج ہم بڑی فنی باتیں کریں گے. یار یہ اتنے مزے کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تو ہماری اپنی انرجی بھی زیادہ ہوئی ہے اور فنی ہی رہے گی. فنی باتیں کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی جی لو میرج کے بارے میں بتانا ہے. مجھے بہت کیوریوسٹی ہے کہ کب آپ دوست بنے, کب آپ نے سوچا کہ یار محبت ہوگی, بیاہ کر لی, پھر شادی ہوگی, ماشاءاللہ بچے ہو گئے. تو بسم اللہ کریں اپنی لو میرج سے. آپ ہی بتا دیں. سچ بتانا ہے نا. سچ کے سوا کچھ نہیں بتانا. سچ بتا دیں. مطلب ہم لوگ جب پہلی دفعہ ملے تھے نا, تب اسامہ کے فالوورز زیادہ تھے. ان کے 2.5 لاکھ تھے, میرے 25,000 تھے. تو ہم نے کولیب کیا آپس میں, ہم نے کہا ویڈیو بناتے. تب میں ماسک میں ویڈیو بناتی تھی نا, میں اوپن ویڈیوز نہیں بناتی تھی. تو اس کے بعد اسامہ جب مجھے ملے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چلو تم ماسک اتارو گے تو کچھ ہوگا نا, یہ وہ. پھر اندر کلیشز آ گئے ہمارے, پھر ہم علیحدہ ہو گئے. ہاں صحیح جا رہی ہے. پھر اسامہ اپنی جگہ, میں اپنی جگہ. پھر ایسے ہی بیٹھے مجھے خیال آیا بابا جی سیالکوٹ بولوں. میں نے ایک آدھی ویڈیو بنائی. کیوں خیال آیا؟ بس پتہ نہیں, مطلب جس سٹی میں آپ رہتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے پورے پاکستان سے پیار ہے, بس میں سیالکوٹ میں رہی ہوں, پیدا ہوئی ہوں, ادھر ہی بڑی ہوئی ہوں, تو اس سے زیادہ پیار. مطلب ایسی ایک آپ کے ذہن میں ایک بات کلک کی بابا جی سیالکوٹ. ہاں بس ایسے ہی. جیسے وہ ابھی بھی وہ ابھی نہیں, ابھی تو ٹائم ہو گیا ہے, وہ لوردا پاوا اختر, وہ مطلب کہ ایک ان کے ورڈ سے. اور پتہ ہے لوگ پروموشن بھی ویسے ہی کرواتے تھے کہ آپ ادھر آؤ اور میرے اس ریسٹورینٹ یا میرے اس برانڈ کے سامنے کھڑے ہو کہ یہی ورڈ بولو, وہ ایسے والا لوردا پاوا. تو پتہ نہیں اسٹائل بھی نہیں پتا. اچھا تو پھر آپ آگے
हाँ रिलेशन का बताना। हाँ फिर मतलब मेरे फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए ना, जब मेरा 1 लाख हुआ उसामा को पता चला, मतलब ऐसे ही पता चला ना कि इन्होंने मैंने इनको देखा। मुबारकबाद दी ना, कांग्रेचुलेट किया वापस आने की। नहीं मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह अच्छा जा रही हो, अल्लाह पाक आपको कामयाब ये करे। लड़कों की यही दुआएं देती हैं, दुआएं ले डूबती हैं लड़कों की, या कहते हैं तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। Oh my God! मुझे याद है, मैं अपनी बात हमेशा कर लेती हूँ क्योंकि लव मैरिज हुई है, आपकी भी लव मैरिज हुई है माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। तो मुझे याद है कि जब मैं व्हाट्सएप स्टेटस का तब ज्यादा दौर होता था, अब इंस्टाग्राम स्टेटस का ज्यादा दौर है, तो मैंने कोई भी टिकटॉक पे वीडियो लगानी तो मैंने वो व्हाट्सएप स्टेटस लगा देनी। तो जुल्कर मैं सबके पॉडकास्ट तब भी करती थी, तो सबके नंबर सेव होते थे और एवरीवन सी, मतलब सब देख सकता था, सब देख सकते थे। तो जुल्कर ने मुझे कहना बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने कहा अच्छा। फिर किसी में बताना ये एक्सप्रेशन नहीं अच्छे दिए, तुमने लिपसिंग नहीं सही की। मैं दिल से सोच रहा है मेरा प्यो लगता है, मुझे बार बार मैसेज कर रहा है, क्यों कर रहा है? बाद में पता चला मैसेज इसलिए कर रहा है कि हाँ जी वो बहुत ऑब्वियस है। नहीं मैं तो देख रहा था ना कि स्ट्रगल बहुत कर रही थी ना, तो मैंने तो इसलिए कहा कि चले मेहनत रख ले, गाइड कर रहे थे आप, गाइड का सीरियसली गाइड ही कर रहा था। ठीक है। फिर कैसी मिली आपको गाइडेंस उसामा से? बस ऐसी मिली कि आज आपके सामने। अच्छा मुझे साइलेंट अपने आपका नाम मुकद्दस है असल, मतलब ये मुझे लगता है काफी कम लोगों को पता होगा। जी बहुत कम लोग, हाँ, क्योंकि मेरी आईडी का नाम ही साइलेंट गर्ल था, शुरू से यही था, मैंने चेंज ही नहीं किया। वैसे ये साइलेंट गर्ल आप हैं तो नहीं? बस मैं तब साइलेंट थी, बस क्या बताऊं। आप तो लाउड गर्ल आपका नाम होना चाहिए। मेरा हाँ मतलब इतना हमारा बड़ा जुल्के कभी कहते हैं ना आहिस्ता बात करो, मैं कहती जुल्के मेरी टोन ऐसी है, मुझसे नहीं आहिस्ता बोला जाता। टोन ही ऐसी होती है ना, वो मेरा भी ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा सा लाउड होता है। मैं भी इसे कहता हूँ यार जरा आहिस्ता बोला करो, क्या हो वो प्यार की बात भी ना चीख के क्या हाँ हो? ये सही बात है, प्यार कर रही है गुस्सा कर रही बाकी ये बड़ा अच्छा सवाल है कि साइलेंट गर्ल क्यों? नहीं बस शुरू से नाम ही यही था, मतलब शुरू से मास्क पहन के वीडियोस बनाती थी ना, तो वो साइलेंट ही वीडियो थी, साइलेंट गर्ल नाम रखा था तो फिर कोई साइलेंट तो तब होती जब गूंगी होती, मास्क पहन के थी ऊ ई आ ई। नहीं वैसे एक यूनिक नाम है। हाँ अच्छा है। तो फिर आप लोग रिलेशन में आए और फिर किसने शादी के लिए प्रपोज किया? तुमने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं रह नहीं सकती, उसने कहा कि मैं नहीं रह सकता शादी। ये भी बड़े मजे का सीन है, मतलब कि हम लोग ना सरगोदा गए थे, तो मेरी बर्थडे थी, तो मैंने पापा से कहा मुझे आपसे ना गिफ्ट चाहिए। मैंने स्पीकर नहीं जो घरों में पड़े होते हैं, एक माइक वगैरह, तो वो मैंने पकड़ कहा पापा मुझे एक गिफ्ट चाहिए आपसे, मतलब उन्होंने कहा क्या? मैं मुझे उसामा दे दे। मतलब ये गांव में सब भी हैं उधर, तो पता नहीं क्या हमारे गांव वाले घर थे ना सारे दादो सारे इकट्ठे थे, हाँ थे हम लोग। पापा ने कहा कि आपको गिफ्ट में बेटा क्या चाहिए, तो इन्होंने आगे से कह दिया कि मुझे उसामा आपका बेटा चाहिए। तो पापा आगे से चुप, पापा कहते अच्छा। फिर पापा ने मेरे से एक हफ्ते बाद बात की पापा ने मेरे साथ, पापा ने कहा क्या तेरा भी है कुछ? मैंने कहा जी पापा कर दे। और ये भी जब मैं फेमस हुई थी ना शुरू जब मैं बाबा जी से आगे कहती थी, तो मैं एक गांव में रहती थी, मैं मतलब कि ना अपनी अम्मी लोगों के पास होती थी। मेरे अम्मी अब्बू का भी आपस में डिवोर्स हो चुकी है, अब्बू ने लहदा शादी कर ली, अम्मी ने भी कर ली, तो मैं अपनी अम्मी के पास होती थी। तो वहाँ पे मतलब के लोग कहने लगे कि ये क्या कर रही है। गांव में आपको पता लोग कैसे होते हैं, कहते इसको निकालो, ये क्यों, मतलब ये क्या कर रही है, ये बाबा जी ये नाम बदनाम, ये फलानी, बड़ा कुछ हुआ। उधर किसी ने दरख्वास्त करवा दी मेरे पे ना, कि ये बाबा जी सियालकोट कह रही है ये वो। मैंने उसामा के पापा के साथ मेरा बड़ा बेटियों वाला ना बना हुआ था, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे ना फ्लैट चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती अब ना। तो मतलब अभी अम्मी और अब्बू के साथ कोई ताल्लुक नहीं? अब्बू के साथ तो मेरा खत्म हो चुका है, तो अम्मी को कभी कभी मिल लेती हूँ। और बहन भाई है आपके? नहीं मैं अकेली बहन हूँ, अकेली बहन, मतलब कि मेरी अम्मी अब्बू से एक ही मैं बेटी हूँ बस बहन। तो मतलब बड़ी औखी जिंदगी थी पिछली, एवं ही बंदा झूठ बोले कि मैं ये मैं वो, मैं नहीं, बहुत जिंदगी थी। यहाँ तक के 5 रुपए के शैम्पू के लिए भी मैं तरसी हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे बैठ के, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना बताते हैं कि पीछे क्या नहीं है। हाँ, तो मैं मतलब कि बहुत तरसी थी, ठीक है। अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरी मतलब हर मतलब चीज के पीछे कुछ ना कुछ होता है, तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने शायद मेरी कोई दुआ कबूल कर ली है। जो भी हुआ, मैं ऐसे बाबा जी से कोट कहने लगी तो मैं फेमस हो गई, काफी ज्यादा हो गई थी ना, मुझे काफी ज्यादा फॉलोवर, 5 साल पहले। तो फिर मेरा रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया था। मतलब कि मेरे मामू थे, वो कहते थे कि नहीं तुम बेटी हो, तुम रहो इधर, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे मामू भी थोड़े मिडिल क्लास थे, तो मैंने कहा अब मैं आपके उनको तंग करने वाला बन सकती। तो वो दरखास्त का क्या हुआ? वो दरखास्त फिर इनके पापा ने मिलजुल के कहीं, मतलब उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब उधर
फिर बादशाह की वो ख़त्म कराई, तो फिर ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन था वो खाली था ना, हम नीचे ही सारे होते थे, तो इनको फिर ऊपर वाले पोर्शन में पापा ने बोला था ये मेरी बेटी है, मतलब शादी से 2-3 महीने पहले मैं इनके ऊपर शिफ्ट हो गई थी, तो फिर उसके क्योंकि बाद issues मेरा और इतने थे ना, उसामा का तो वाली साहब ने बोला कि आप ले आओ, कि इधर ही सेफ रह सकती लड़की है। है। हाँ कि फैमिली है इधर, चलो इधर रहो, तो बाकी फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है पैसा भी आया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है, जो लोग बातें करते थे वही लोगों के आज मुंह बंद है, मिलने को तरसते हैं, वही फैमिलीज वही रिश्तेदार सब, लेकिन अब मैं किसी को कोई लिफ्ट नहीं करवाती, साफ सीधी बात है, जो आपके बुरे वक्त में आपके काम नहीं आया, कोई मेरी माँ थी मेरे साथ, तो मैं आज भी उनको मिलती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। हालांकि देखिए ना हर चीज़, अब उनकी डिवोर्स हो गई थी, मैं उनको तो नहीं कह सकती थी ना कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, या मैं उनको ये कहती कि आपने मेरा क्या किया, ये वो नहीं, मैं अपनी माँ को मिलती हूँ, उसका कोई, मेरी माँ का तो कोई कसूर नहीं था ना, तो बाप का ही कसूर था जो भी है, उसने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया, मेरी दादी ने मुझे संभाला था, लेकिन दादी फोत हो गई, उसके बाद मैं अपनी अम्मी के पास आ गई, तो ये मैं सच्ची बातें आज आवाम को बता रही हूँ। चलिए अब आप देखें ना आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। ये जो अच्छा हस्बैंड है ना, इसकी तो क्लास अब ले लूं। लेकिन खैर वो थोड़ी देर बाद लेंगे, वो बाद में, पर मैं इजाजत मांग रही हूँ, साइलेंट इजाजत है ना, मेरा भाई हमें चित्रोल करेंगे, चित्रोल खुली मिली करो, कोई मसला ही नहीं है, करनी चाहिए ना, मतलब बहनों का तो साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इनसे मेरा सवाल है एक, वो ये था कि आपने जिस तरह कहा ना कि पैसे भी आ गए, तो आपका बेसिकली आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हैं, तो आपका किस तरह अर्निंग का क्या सीन था और किस तरह शुरू हुआ? मेरी जो फर्स्ट इनकम आई थी ना, वो स्नैक वीडियो ने पता सैलरीज देना स्टार्ट की थी, मेरी 2 लाख रुपया फर्स्ट इनकम आई थी स्नैक से, उससे पहले 25,000 30,000 प्रमोशंस के कंपनी थी, हाँ उन्होंने 50,000 हाँ 50,000 30,000 वो मंथली देते, तो पहली सही वाली इनकम वो आई थी स्नैक वीडियो से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो यार शुक्र है अल्लाह का, अच्छे दिन आए, अच्छे से बेहतर होते गए, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी आप किस तरह, अल्लाह पाक ने रिस्क उस हिसाब से बढ़ाते बिल्कुल बढ़ते, तो अभी आप किस तरह कमा रही हैं, आपकी क्या अभी भी प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, या टिकटॉक लाइव भी बैठ जाते हैं, अभी बच्चे हैं ना, आपको पता है, तो बच्चों के माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, हाँ माशाल्लाह 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों के नाम क्या है? मोहम्मद मूसा और कायनात फातिमा। नाम बड़े खूबसूरत है, नाम किसने सोचे? मूसा बली मेरी पप्पो ने नाम रखा था, अच्छा, और कायनात मेरे बड़े भाई ने नाम रखा है। क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत आपने है। नहीं कुछ सोचा था? मैंने सोचा था कुरतुलैन, लेकिन इनके बड़े भाई की जो बेटी हुई है ना, उसका नाम मैंने रखा है। ये बदला ले लिया, ये बदला लिया कि तूने मेरी बेटी का रखा है, मैं तेरी बेटी का रखूंगी। नहीं अच्छा है, वो भी हमारी बेटी है, हमने उसका नाम कुरतुलैन रख दिया। फैमिलीज में ऐसा ही होता है, मिलजुल के ऐसे प्यार बढ़ता है। हाँ, ये होता है कि तुमसे मशवरा ले लिया, तुम बता दो, फिर एक मशवरा लेके बच्चे का नाम। मैंने तो ऐसी फैमिलीज देखी है जो 2-2 साल बच्चों के नाम ही चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही है, हम शादी नहीं आती। हाँ, बंदा ऐसे पूछता है, अच्छा आजकल क्या नाम है इसका, ये है, अच्छा ठीक है, फिर अगले हफ्ते जाते हैं, आजकल इसका नाम क्या, अच्छा ये है, तो मतलब हाँ, 1 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। तो अब आपकी माशाल्लाह लाइफ सेट है, और अच्छा कितना अर्न कर लेते हैं अभी मंथली? अल्लाह का शुक्र है, वो तो शुक्र है, कितना कर लेते हैं, मतलब कोई 2-4 करोड़। बंदी फिट है ना यार, मैंने ऐसे किया एकदम से, मैं क्या कह रही कि 2-4 लाख मतलब कुछ भी है, मतलब अगर मैं लाइव मैं ही बैठता हूँ, अगर मैं लाइव भी बैठ जाऊँ और इनकी प्रमोशंस और मेरी प्रमोशंस भी मिला के 3 मिलियन प्लस चला जाता है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइव तो पे हम सेविंग लोग वगैरह कर रहे हो कि बस नहीं, सेविंग्स हमारी साथ साथ ही है, सेविंग्स हम कर रहे हैं, वो हमारे वाली साहब हमें गाइड करते रहते हैं। यार लाइव का बताओ ना, किस तरह करते हो ये लाइव? लाइव वहाँ पे डबल टैप करो गाइस, सारे डबल टैप करो। नहीं अच्छा, प्रॉमिस मुझे आज तक ये डबल टैप का नहीं पता चला। मैंने लाइव बहुत, मतलब जब भी हम कभी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, अब तो शायद पाकिस्तान में भी कभी कभार नजर आ जाती है, नहीं तो जब आपका सर्वर चेंज होता है शायद आता है तब, तो मैं हम लोग ऐसे रात में बैठे होते हैं, तो हम देख रहे होते हैं लाइव, तो वो यही बात कह रहे होते हैं। देखी है दुबई की सिम जो होती है, डबल टैप नहीं किया होगा? नहीं मैंने डबल टैप भी किया, उससे कुछ होता नहीं, मैं वही तो कुछ नहीं होता, वो अगर सिर्फ आप पाकिस्तान में ना जाती है, आपकी चलती है। तो कमाते कैसे हो लाइव से? वो गिफ्ट्स होते हैं वहाँ पे, वो कैसे देते हैं आपको? वो पायनियर हम कर लेते हैं,
وہ ڈالر عوام کیسے دیتی ہے آپ کو؟ عوام میں نے دیتی گفٹ ہے سینڈ کرنا ہے، عوام باہر بیٹھی ہوتی ہے، وہ پاکستان والے نہیں دے سکتے؟ نہیں پاکستان والے تو یہ پاکستان میں باہر بین اتنی ہے۔ عوام بیٹھی ہوئی ہے جو اتنے گفٹ دے رہی بڑا ہوتی کچھ ہے۔ ہے۔ مجھے زیادہ سینڈر ملے ہی سیالکوٹ کے ہیں ماشاءاللہ، اچھی سپورٹ کرنے وہ والے باہر ہی جو ہے نا، ہوتے ہیں۔ اچھا وہ مجھے تو مطلب مطلب وہاں پہ رینک ہوگا کہ اس چیز کے اتنے پیسے، اس چیز ہاں کے؟ جی، وہاں مطلب پہ ایک نا شیر ہے، ایک یونیورس gifts ہوتے ہے، ہیں، اگر آپ کو ایک یونیورس شیر ایک شیر۔ میچ میں پڑ گیا نا تو آپ پاکستانی 40 کے لے کے اٹھ گئے۔ ایک شیئر مطلب 40,000 روپے کا۔ ہاں جی، اور وہ جو گیگل ہوتی ہے وہ والی بھی اتنے کی ہوئی ہے، ایگل وہ اتنے کی ہے، اس سے کوئی 3-4 ہزار زیادہ ہوگا۔ اچھا، اور وہ یونیورس 30 اور جو 22 سے ہمیں پلے کرتے ہیں نا ان کا کم از کم 1 لاکھ کا شیئر آتا ہے پاکستانی، 1 اور لاکھ ہمیں 40,000 ملتا ہے، باقی 40% ٹک ٹاک کھاتی ہے نا، 60%۔ ہاں 60% ٹک ٹاک لیتی ہے۔ ہم ادھر بیٹھ کے کہہ رہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات آج بنے۔ 500-600 اصل کما وہ رہے ہیں ٹک ٹاک ہاں والے۔ اصل ٹک ٹاک کما رہی چلو ہے، لیکن انہوں نے ایک ذریعہ بنایا، مطلب نہ ہونے سے کچھ ہونا لیکن بہتر ہے۔ آج کل نا بڑی کچھ- عوام بیچاری کما رہی ہے، چلو یہ بھی اچھا ہے، بڑے لوگوں کا بہت اچھا رزق ہوا۔ لگ چکا ہے یہاں پر پہ۔ آپ دونوں لائیو کرتے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب پاکستان میں، کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں نا کبھی بھی کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر جو لائیو ہو رہے ہوتے ہیں وہ پتہ کیسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ جیسے اب میرا کپڑوں کا برانڈ ہے نا، تو میں کھڑی ہو کے میں کہوں گی یہ والا ڈریس ہے، یہ والا ڈریس ہے، اس میں یہ سائز ہے، یہ کلر ہے، یہ مطلب میں اس کی اسپیسیفکیشن بتاؤں گی تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں دس اینڈ دیٹ، اور لوگ لائک کریں، شیئر کریں، وٹ ایور جو بھی کر رہے ہیں۔ پر پاکستان میں جتنی بھی لائیو ہے وہ چیلنج کرواتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ تو اسی لیے 3-4 منتھ ہو گیا ہم آ نہیں نہ رہے، کیونکہ بہت زیادہ رف ہوگی ہوئی ہے لائف۔ ہم بھی کوئی ہوسٹ ڈھونڈتے ہیں، کوئی اچھا یہ کوئی لڑکی ڈھونڈتی ہے، میں کوئی لڑکا، اب اس طرح کے مل ہی نہیں رہے، وہ بھی سارے لیفٹ کر رہے ہیں، وہی کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ بس وہی 1 سال بہت اچھا ان کیا، میں بتا رہا ہوں بہت اچھا ہاں کیا ہم نے۔ کوئی بھی نہیں تھا تب اتنا جب ہم لوگ بیٹھ گئے تھے لائیو نا، لیکن ہم نے 1 سال اچھا کما لیا ہے، اب کما کے سائڈ پہ ہو گیا آپ، ہاں مطلب وہی بات ہے نا کہ ابھی میں دوبارہ سے شروع کروں گا اکیلا۔ سما کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی نہیں، میں بھی کبھی لائیو آ جاتی ہوں کبھی نہیں آتی۔ اچھا لائیو میں آج تک کا، اچھا آپ دونوں میاں بھی لائیو کرتے ہو، لائیو پہ بیٹھتے ہو اور کافی پیسے ارن کرتے ہو، چیلنج بھی کرتے ہوگے، لوگوں کو چیلنج دیتے بھی ہوگے، تو آج تک کا کوئی ایسا مومنٹ جس نے بہت ہی امبیرنس کیا ہو آپ کو کہ یار آپ کہتے ہو یا شٹ یار کی کہہ گیا منو، اور ان لوگوں نے اس پہ ٹرول بھی کیا ہو آپ کو؟ میرے ساتھ ہوا تھا 1 دفعہ، اس کے بعد اس بندے کے ساتھ پی کے نہیں لگایا کبھی۔ نہیں کیا ہوا؟ مطلب وہ جب اب میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پلے نہیں ہوا، یہ حصہ ہے، کبھی ہار کبھی جیت، اب اسے پلے ہو گیا، کہتا ہے تیرے اتنے فالوور ہے، تیری یہ اوقات ہے۔ میں نے کہا یار واقعی بات تو صحیح کر کون تھا؟ تیرا یہ لیول ہے، وہ میں نے اسے میچ کٹ کیا، میں نے کہا بھائی آپ بھاگ گئے، آپ نے ادھر ہی روکا۔ میں ہارا ہوا تھا، میں بول ہی نہیں سکتا، میرا سکور ہی نہیں تھا جب اتنا۔ عزت پہ بات آ جائے تو پھر ہم اس میں بندے کہتی کے ہوں ساتھ اچھی نا خاصی پیکے سنا نہیں کے نا لگاتے۔ گالیاں بھی دینی پڑے دو اس کو، کہتے بھائی ہیں کیوں اتنے بندہ followers بات ہیں۔ کرے، ہم اور اپنی ویسے- محنت کر رہے ہیں، کوئی کیوں ہمیں بات کر کے جائے، کیوں یار میں نے ان کو بولا تھا، نہیں یہ پتہ کیا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس سے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، کسے کس طرح نہیں، ہم تو سب کو ایک جیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اب اگلا بندہ کیسا نکلا ہے ہمیں تھوڑی پتہ ہے۔ اچھا پر یہ بات ہے کہ اگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، جیسے لائیو اگر ہم انسٹاگرام پہ بھی لائیو سیشن کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے، تو ہمارے میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نیچے گالیاں بھی پڑی ہوں گی۔ نہیں نیچوں کی ٹھیک ہے؟ ٹینشن نہیں نہیں، وہ فیس ٹو فیس جو اتنا بندہ دیکھ رہا تھا نا اس کی وجہ میں سے نے کہا یار عجیب بندہ ہے، میں ہارا ہوں، ٹھیک ہے مجھے تو پنشمنٹ بتا، تو آپ اسے کہہ دیتے بھائی معذرت میں ہارا۔ معذرت میں مجھے نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، ہمارے اتنے فالوورز ہیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جب بھی بیٹھے ہیں آپ کو لاکھوں کے حساب سے سینڈنگ ہو، نہیں ہوتی کبھی بھائی، کبھی نہیں بندے کی ہوتی، کبھی قسمت ٹھنڈی کبھی اچھی ہوتی ہے۔ اب اگلا بندہ بات سنا کے کیوں جائے بھائی، پہلی بات تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے کسی کو۔ ابھی اسامہ کو بڑا بڑا پلے بھی ہوتا رہا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، میں تو اسامہ کو بولا تم نا کہاں پہ تھی 2-4 گالاں دے کے پھر بند کرنا سی فون۔ یہ نیچے ہوتی ہے جب میں میں نیچے لائیو بیٹھا ہوتی نا، ہوں، یہ سب نیٹ اوپر فلکس live دیکھ بیٹھے رہی ہوتی ہے سیزنز اپنے سارے، ہاں، یا بچوں کو سنبھالنا، یا بچے، ہاں کیونکہ ماشاء اللہ بچوں، ابھی ہماری ایک بیٹی ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہم نے ماشاء اللہ اسے کیسے سنبھالا ہے۔ جب میں تھک جاتی میں کہتی ذوالفقار تمہارے سے بول، جب ذوالفقار تھک جائے ذوالفقار کہتا ہے کمل اب تمہارے سے بول، تو اس طرح چلتا رہتا ہے۔ میرے خیال سے بات ہوگی ہے ذرا، نہیں اچھا اچھا وہ تو ہاں کریں گے، لیکن میرا ایک یہ تھا کہ وہ لوگوں کا اکثر ہوتا ہے نا، لوگ اصل میں اسامہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں نا کہ یار ان کے فالوور زیادہ تھے، ان کا فیم زیادہ تھا، تو یہ آج ہمیں نئی بات چلی کہ اسامہ کے
जी followers शुरू से ज्यादा उसामा थे। के ज्यादा थे, मेरे हाँ। 25,000 थे, उसामा तो के ये लोगों 2.5 को भी लाख क्लियर थे। कि लोग यार जी। साइलेंट के फॉलोअर्स तो बहुत लोग ज्यादा यही थे समझते उसामा। हैं कि शायद मैं इसके साथ अटैच हाँ। था तो सिर्फ फेम के लिए था। फेम के लिए ये लेकिन क्लियर अंदर होनी हमारा चाहिए। झगड़ा लोगों हो को गया नहीं था, पता। उसके बाद भी मैं हाँ। सही वाली फेमस हुई थी। हाँ वो झगड़ा अच्छा था ना झगड़ा। वो उसके लिए वो देखो ना किस्मत में ऐसा कुछ किस्मत था में कि है। जिसके बाद तुम्हें एक अल्लाह पाक ने एक मैंने इज्जत नवाजी। ब्लेड भी मारे थे, मैंने कहा आपने मेरा मास्क उतरवा के और मेरे साथ ये ज्यादती कर रहे हो, अब आप मुझे छोड़ नहीं, वो रहे हो। ज्यादती नहीं थी। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने नहीं इंस्टा पे भाई। मैसेज कर करके मैंने कहा खुदा का वास्ता ये देखो मैं बेचारे अच्छा आज मैं किधर ये हूँ? सारी राज की बात हाँ, है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। नहीं ये झगड़े तो हमने और भी देखे झगड़े हैं। यार ये झगड़ा नहीं ये ये तो बहुत छोटा बात ये झगड़ा है। सवाल मैंने करना है क्योंकि मैंने इस पे चित्रोल करनी है भाई, करें, सीधी सी बिल्कुल। बात है, कोई भी ऐसी हरकत करेगा चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, उसकी चित्रोल होगी। ये दूसरी शादी का क्या सीन था? ये क्या असल में थी वैसे सिस्टर असल में बात पता है क्या हुई थी, ये ना मेरे से लड़ पड़ी नहीं थी। सीन असल था कि नहीं, क्योंकि लोग कहते रहे ये फेमस होने के Famous लिए, होने जैसे के वो लिए। आदि नहीं 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 रहे। हमने तो मैंने वो लोगों को आज लगा तक कि मैंने हाँ। कभी ये चीज नहीं की कि मैं मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही तो मैं कोई ट्रिक लगा लूं। नहीं मेरी नहीं होती, मैं कहता हूँ यार इसका चल रहा है, ये भी मेरी है, ऐसे मेरी ही वाइफ है, कोई इशू बिल्कुल नहीं है, तो मैं इस तरह का बंदा हूँ। ये जो शादी वाला सीन था ये बस थोड़ा सा भटक गया, गुस्से में भी आ गया। ये भी नहीं थी है, ये 2-3 महीने तो मेरे पास है ही दो नहीं थी। नहीं एक ही महीना। क्यों नहीं ये कहाँ ठीक थी? है, नहीं ठीक है, भटक जाए बंदा खुदकुशी कर लेते, अस्तगफिरुल्लाह। प्लेट मार लेते, अपने गलत आप को नशे कुट रहना। लेते, कुछ कर लेते। ये शादी का भटकना कौन सा कि शादी भटक के solution शादी कौन कर सी ली, है? ये तो बड़ा अच्छा भटकना हाँ सिखा नहीं रहे अब हो तुम। बताएं बिल्कुल। नहीं ये लड़के ना चलेगी हाँ। सरगोदा नहीं वो तो लड़ते नहीं होने बेचारे है ना। नहीं उधर से आ भी नहीं थी ना रही, मतलब ये लड़के उधर चली गई थी गाँव ठीक चाचू है। लोगों के पास। तो मैं पीछे से इस गुस्सा कर गया, एक दिन इसने काफी मुझे सुनाई भी कॉल करके। मैंने फिर उस दिन जो है ना सोचा उसी मैंने- दिन निकाह अब कर लिया। नहीं, देखें नहीं, दो बीवियां हफ्ते गुजर रहे थे। नहीं देखें अब बीवी अगर नाराज होके जाती है उसने वापस घर ही आना होता है, ठीक और है? आप मनाने भी जा सकते और हो। मेरा और कोई भी नहीं था कि मैं इससे किसको बड़ा बातें कुछ सुनाती, कहा मैं था, किसको ये कहती। मानती थी। अब इनके साथ मैंने शादी की थी तो मैंने ये इसलिए तो नहीं की थी कि हमारे झगड़े होते रहे और मैं उधर ये कहीं और ये वो, नहीं मैंने बातें सुनाई थी। गुस्से में बंदा आ जाता है और मैं वैसे भी थोड़ा गुस्से में आ ही जाती हूँ फिर। वजह भी कोई नहीं थी ना गुस्से की, एवं ही गुस्सा कर गई। वजह मैं कुछ लाइव बैठा हूँ, मेरा शोर आ रहा है तो बाहर आके बोलने लग गई है। लेकिन जिसके सुबह सुबह आ साथ गई जिसके साथ इन्होंने शादी की थी वो इनकी एक्स थी, मुझसे पहले उसके साथ रिलेशन में थे। ओए तो वो बैठी हुई थी अभी तो उसके साथ तुम्हारे शादी लिए। भी कर ली वो जाएगी। इतनी वो मान पागल है, कैसे अपनी गई? जिंदगी हाँ। बर्बाद उसने खुद अपने हाथों कर ली। मान कैसे गई वो? बस इन्होंने मनाया ही ऐसे है। 24 क्या है? घंटे कॉल, भाई ऐसे नहीं 24 घंटे कॉल, मुझे काम भी होते थे कि मैंने उसके साथ ही लगे रहना था। वो जस्ट ऐसी बात शायद करते करते मारी आगे निकल गई बात। किस आगे तरह निकल का गई। क्या? ये उसी महीने में हुआ था? हाँ उसी इनको ये था कि मुकद्दस ने अब डिवोर्स ले लेनी है, हालांकि 2 बच्चे थे मेरे। मैं तो कभी भी सोच नहीं, अभी सकती कायनात इस नहीं बात का। हुई है। कायनात होने वाली थी लेकिन उसको भी पता था होने वाले हैं बच्चे। वो भी पता नहीं जाहिल थी, पढ़ी लिखी जाहिल थी वो, जिसको पता ही नहीं था कि इसके 2 बच्चे हैं। ये जब उस औरत का नहीं बन रहा तो मेरा कैसे बन जाएगा कल ये को? बात बिल्कुल मैं आपका बना हुआ हूँ ना। नहीं अब उसने वो तो बनाया, बात की अभी बात तो नहीं मैं नहीं आपका मैं- बनाऊं। नहीं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुकद्दस को कब पता चला कि मुकद्दस को पता चला था जब इन्होंने इनकी पूरी फैमिली ने मुझसे छुपाया। नहीं, ठीक फैमिली है? की बात नहीं नहीं, नहीं अंदर मैं आपको सबको बताता मैं बताती हूँ। इनकी फैमिली ने छुपाया तो उसके बाद जब मेरी इन्होंने बोला कि उसको टेंशन नहीं देनी, उसको पता चलेगा वो सारी बातें, बेटी होने वाली थी ना, तो नहीं जब बेटी हो जाएगी मैं खुद बता दूंगा। लेकिन बेटी होने के 10-20 दिन गुजरे, ये उसको शादी सही वाला करके ना वो क्या कहते हैं मतलब रुखसती करके उसको ले आए दूसरे बना घर, के, अच्छा। जहाँ पे इनके पापा की मतलब सेकंड वाइफ रहती थी ना, इनके पापा की दूसरी बीवी रहती थी, उधर इन्होंने अपनी दूसरी वाइफ रखी हुई थी। ये सही है, खानदानी चल रहा है। तो नहीं, मुझे वो पता है फिर क्या हुआ, वो इनको अगले दिन ही पता चल गया था। हाँ, जिस दिन ये वो आई एक थी, पहले मेरी दिन लेके- सिस्टर ने बताया था इसको और कि इनकी उसामा sister- भाई ने ना आज अपना वो कंटिन्यू नहीं नहीं ऐसे नहीं उन्होंने बताया। मैंने कहा ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं उसामा, शादी पे इन्होंने मुझे घर से बोल के गए थे मैं 3 दिन घर नहीं आऊंगा, मैं अपने दोस्त की शादी पे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, पहले तो कभी नहीं, मुझे ये बड़ी बात लगी कि पहले तो कभी नहीं उसामा अपने ने शोहरों किया। को दोस्त की शादी पे अकेले 3 मत दिन के लिए तो भेजें। बिल्कुल नहीं जाने दो। अकेले मत भेजे, साथ रहें, साथ जाएं, कोई मसला नहीं। नहीं मैंने मेरी तो यकीन पूरी था ना, फैमिली ने मुझे तो इसका यकीन साथ था। दिया। मैंने कहा मैं वो बाद में। बताती हूँ सारा कुछ, मैं सच बताऊंगी, टेंशन ना लें। तो उसके बाद ये था कि मैं मतलब कि मैंने इन पे यकीन किया। मैंने कहा वाकई शादी पे मैंने वो ना छोटी थी, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा कितने प्यारे लग रहे हैं उसामा। तो कहते हैं हाँ प्यारे तो लग रहे हैं, ये किसकी शादी पे गए हुए हैं। हाय अल्लाह, मुझे वहीं पे सूझ गई है। मैं क्या हीरा के साथ, और उस लड़की का नाम हीरा था।
मैंने कहा उसके साथ किया इन्होंने, इनकी शादी थी ना ये, वो मेरे पैरों नीचे ज़मीन निकल गई, मेरे अथरू नीचे, मैं नीचे आई मामा के पास, मैं कहा मामा जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी, आ गए ना मेरी वो भाभी बैठ, मैंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता सी पर तुसी मैंने दसिया नहीं कि तुसी मेरे नाल ज़्यादती की है, मैंने सबको मतलब तब उनको ये इन्होंने मना किया हुआ था ना सबको, उनका भी कोई कसूर नहीं था, इन्होंने बोला था कि नहीं भाई बताना अभी नहीं, जो जिसने बताया मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर उसके बाद भाई मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ। फिर उसके बाद ये था कि मैं ना मामा ने मुझे बोला उस घर जाओ, उस घर देखो कौन कौन रहता है, मैंने जूता नहीं पहना, मैं छिले में थी, जिसको मतलब 10 दिन गुजरे थे बेटी को ना, मैंने जूता भी नहीं पहना, मैं भागी दूसरी कॉलोनी में चली गई हूँ ऐसे ही साथ में मुलाजिम को लेके। ये मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा आप कहाँ हैं, आपने शादी करी है, वो तुम घर जाओ मैं आता हूँ, मैं इधर दोस्त की शादी पे आया हूँ, मान नहीं रहे कि मैं इधर हूँ, मैंने ऊपर से जाके पकड़ लिया, नहीं मैं मान गया था। ये पापा के साथ गपशप कर रहे थे दूसरे घर में अपनी दूसरी बीवी के साथ बैठ बूठ के ना, तो बीवी को देख के क्या किया, कुटिया फड़ के? मैंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी तो तरबियत ये नहीं थी कि मैं उसको मारती, क्योंकि उसको भी अकल, उसको इतना तो होना चाहिए था कि मैं किसी का घर खराब कर रही हूँ या मैं किसी के ऊपर जा रही हूँ, तो ऊपर से वो कहती थी तुम्हें मेरी बददुआएं लगे तुम्हें ये, मैंने कहा भाई तुसी दोवां ढल मिल के धोखा मैनू दिता है ते तेरियां बददुआवां मैनू किवें लग जानियां ने हैं, मतलब वो खुद आप लोगों ने खुद सारा कुछ किया। फिर मैंने उसामा को कह दिया था या मैं या वो। अच्छा फिर जो वीडियो बनाई थी वो उसी जोश में बनाई थी? हाँ वो यही मैंने सोचा था कि अगर ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक थे हम दोनों इकट्ठे सरगोदा गए हैं, मैंने कहा ठीक है जैसे आप बोलोगी, क्योंकि ये मुझे कह रहे थे कि मैं छोड़ देता हूँ, छोड़, इन्होंने नहीं छोड़ना था, इनका माइंड यही था कि नहीं छोड़ना, ये बस मुझे लारे लगा रहे थे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं, मेरी फिर कदों फेम कदों काम आएगा मेरे, हूं नहीं तो फिर कदों हूं मैनू इन्हां दी जरूरत है, फिर मैं वीडियो लाती हूँ गुस्सा आया, चलो हूं तो डिलीट कर दिया अब? हाँ फिर प्राइवेट कर दी थी वो, 5 घंटे में 6-7 मिलियन पे चली गई थी वीडियो। ये काम अच्छा है, हर हफ्ते बाद कह दिया करो। नहीं ये जिनको लगता है झूठ था ये बिल्कुल सच था। नहीं फिर क्या इन्होंने कुछ किया उसका? हाँ जी वो फिर मेरी मैंने इतना उन्होंने कहा था कि तुमने गलत किया है तुम हम। हाँ भाई ये बात है, इनकी जो फुफ्फो लोग थे, इनकी अम्मी थी, इनके भाई थे, वो मेरे साथ थे सब, उन्होंने कहा था कि तुम उसको छोड़ो ठीक है, और बाकी ये था कि सभी मेरे साथ, पूरा खानदान मेरे साथ था। उन्होंने कहा था अगर ये सारे फोन करते थे मुझे, वो कह रहे थे हमने तुझे बुलाना नहीं, हमने इसे ले जाना अपने पास ही रखना है। और इनके चाचू ने मेरा इतना साथ दिया ना, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनकी बेटियों के अच्छे नसीब करे, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे बेटियों की तरह तब ट्रीट किया था, वो समझते थे कि मेरी अपनी बेटी और तब मतलब रिश्तेदारों का भी तब भी पता चलता है जब पे आप पे मुश्किल एक वक्त हो ना कि आपको वो किस तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि उसामा नहीं कुछ भी नहीं असी भुगत लांगे, मतलब कि कोई वादा घाटा होएगा असी हैं वहां बैठे, असी कादे लेंगे, साडी जिंदगी है असी भुगत लांगे, तुसीं साडे बच्चे हो, पर इन्ना नहीं सी मन्नी उन्होंने, मान गया था। तो अब आपकी दूसरी शादी, आपने डिवोर्स दे दिया? हाँ अब तो काम खत्म हो चुका है, तकरीबन 8-9 मंथ हो गया सिस्टर काम को खत्म हुए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।